A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. But before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. I'm teaching you Science Class 8 and we are going to start a new chapter, that is Coal and Petroleum. This is the fifth chapter of your book, okay? And this is going to be the first class, alright? So without wasting any further time, let's get started. So what we'll be discussing today? Today we'll be reading natural and man-made materials, resources, inexhaustible, exhaustible resources and coal. Okay, so today we are going to cover these 5 topics in this part. Alright, so let's start. So first topic is natural and man-made materials. So what are natural materials? You have already read in the chapter synthetic fibers and plastics. Alright. So, what are natural materials? Materials that are obtained naturally. Okay, like maybe from the plant products or animal products, without the interference of humans. All right. And what are man-made materials? Materials that are synthetically obtained, either from that of chemicals and are manufactured in the where it is manufactured in the laboratories, not laboratories, factories. Okay. Both are manufactured in factories, but basically the man-made is actually made up of chemicals, whereas natural materials are made up of plants and animals extraction or whatever like products. Okay, all right. So first of all, what are the different sources we'll discuss? So in this slide, we'll be discussing objects that are made from natural materials से हमें जो objects obtained होता है हम उन्हीं के बारे में discuss करेंगे. Okay. The first source that we are going to discuss is plants. ओके प्लांट से हमें बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है. कोई मुझको बता सकता है कि हमें प्लांट से कैसे कैसे मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट वी एक्चुअली obtained फ्रॉम प्लांट. कोई भी प्रोडक्ट का नाम लो, आपको पता है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. लाइक हमें कॉटन मिल रहा है, ठीक है, वुड मिल रहा है, रबर मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स. ओके, वी आर गेटिंग फ्रूट्स, वी आर गेटिंग वेजिटेबल्स, वी आर गेटिंग लीव्स, ऑलराइट, बार्क ऑफ द ट्रीज. तो जो प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो वेरियस चीज़ों में यूज़ होती हैं, राइट. ओके, सो a lot of things like firewood के लिए यूज़ होती है, रबर बनाने में यूज़ होती है, then it is used for timber, leaves we eat, okay, fruits, vegetable, it gives us shade. So lots of products are actually obtained naturally from the plants. So what are here that we obtain in the slide? हमें wood मिल रहा है, okay, the natural product that we are obtaining from plant is wood, okay, लकड़ी. तो ये जो wood मिल रहा है ठीक है, ये जो वुड मिल रहा है उससे क्या क्या बन रहा है, हम क्या बना सकते हैं इस वुड से. हमारे घर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस वुड से बनी हुई हैं, जैसे कि आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, कपबर्ड्स हो गए, ठीक है. सो लॉट ऑफ वुडन थिंग्स, बेसिकली टेबल चेयर, ओके, स्मॉल स्मॉल जो जितने भी शेड वगैरह हुआ, या फिर आपका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज़ जो घर पे यूज़ होता है. टेबल चेयर के अलावा और क्या दिखता है आपको? बेड हो गया, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें जो वुड से बनती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. फाइन, ओके. नाउ रबर. रबर यू नो रबर जो यूज़ होता है, हम जो चोटी में बांधते हैं रबर, या बलून में रबर ही यूज़ हुआ होता है. टायर इज मेड अप ऑफ अ टाइप ऑफ रबर, राइट. उसके बाद ग्लोव्स जो हम पहनते हैं, सो दीज ऑल आर मेड अप ऑफ रबर. हम जो इवन मिटाते हैं वो भी एक टाइप का रबर है. ऑल राइट. Next, cotton, the dresses we wear, okay, cotton. So these all are products of plants. ठीक है, cotton हो, rubber हो, wood हो, these all are the products of plants which are obtained naturally and hence they are known as natural materials. Alright. नेक्स्ट एनिमल्स. एनिमल से क्या मिलता है हमें बताओ. एनिमल से हमें उल मिल जाता है, ठीक है, लेदर, सिल्क मिल जाता है. बेसिकली जो दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें obtain होता है एनिमल से, जो हमने सिंथेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज उल एंड सिल्क. तो उल हमें उनके फर से मिलता है, जैसे शिप से मिलता है, या फिर आपका लामा से मिलता है, या फिर याक से मिलता है. तो यहाँ से हम क्या बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं, मफलर्स बनाते हैं, ठीक है. सिल्क से हम क्या बनाते हैं, ड्रेसेस, कपड़े पहनते हैं. लेदर मिलता है हमें, ठीक है, जैसे कि क्या बहुत सारे लोगों का लेदर हम पहनते हैं. क्या क्या लेदर बताओ. द लॉट ऑफ लेदर्स वी बेसिकली यूज. चमड़ा जो यूज होता है, कैमल,
ठीक है, कैमल के चमड़े से जूते बनते हैं, बेल्ट बनता है, शूज बनता है. दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल नॉट टू वेयर लेदर व्हाइल विजिटिंग टेम्पल्स और मॉस्क एंड ऑल. बेसिकली टेम्पल्स, क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है. ठीक है, सो दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स एंड दे आर ऑल्सो नेचुरली obtained. ऑलराइट, भले ही वहाँ पे मतलब ह्यूमंस का इंटरफेरेंस ऑफ कोर्स होता है, लाइक ह्यूमंस बनाते हैं, बट नेचुरली obtain कहाँ से होता है? प्लांट से या फिर एनिमल से. यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? आफ्टर obtain करने के बाद एनिमल्स जो मतलब हम ह्यूमंस जो होते हैं वो बनाते हैं, या फिर उसको जो भी पर्टिकुलर है मतलब काटते हैं, उन्हें बुनते हैं. ठीक है, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होती है, फिर सप्लाई होता है. ठीक है, बट द सोर्स इज नेचुरल. ऑलराइट, रॉक्स से आती है चीज़ें, जिसके मेटल्स आता है, सॉइल आता है. ठीक है, सॉइल से हमें क्ले पॉट बनाते हैं, हम लोग वैस बनाते हैं, हम जो फ्लावर वगैरह रखते हैं, फुलदानी, वो क्या बना? मिट्टी से बना हुआ होता है, क्ले से बना हुआ होता है. ठीक है, मेटल से स्पून आता है, केटल आता है. तो दीज आर ऑल नेचुरल obtained products. Okay, we obtain all these products naturally, and lots of products we use at home are actually made up of natural materials. Okay, all right. नेक्स्ट इज मैन मेड मटेरियल्स. अब बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन. वी हैव एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन लैबोरेटरीज. लाइक हम बहुत सारे केमिकल्स यूज करके कुछ नए नए प्रोडक्ट रोज बनाते हैं. सो हम क्या क्या बना रहे हैं? जैसे प्लास्टिक हमने पढ़ा था उसी चैप्टर में, बहुत सारे प्लास्टिक्स तो अनगिनत वी यूज एवरीवेयर. टुडे नाउअडेज वी आर यूजिंग प्लास्टिक्स लाइक रूलर, बॉटल, स्ट्रॉ, कप, ग्लास, कंटेनर्स. तो जो भी है वो प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो या, ठीक है. तो देयर आर लॉट ऑफ प्लास्टिक्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. इवन इफ हमारे वायर्स वगैरह में प्लास्टिक होते हैं, बोर्ड्स में भी प्लास्टिक होते हैं, पंखे में भी प्लास्टिक होता है. whatever we are using today in our tiffin, there is plastic. We are carrying somewhere, it is plastic. So maximum 90% जो चीज़ें होती है वो प्लास्टिक होती है. प्लास्टिक के चप्पल भी होते हैं. ठीक है, so our life is totally actually captured by plastic nowadays. All right, okay. क्लोथ्स पहनते हैं हम, कपड़ा रेयन का आता है, नायलॉन का आता है, पॉलिस्टर कपड़ा पहन लेते हैं. ठीक है, और इवन इफ ये सब में नेट बनने में यूज़ होता है. ओके, मच्छरदानी जो होता है वो भी यूज़ होता है. टेंट होता है वो सिंथेटिक मटेरियल है. रेन कोट हम पहनते हैं, अम्ब्रेला हम यूज करते हैं. दीज ऑल आर मैन मेड मटेरियल्स. दीज आर द सोर्सेज ऑफ दिस मटेरियल्स आर नॉट नेचुरली obtained. ओके, सो दीज आर मैन्युफैक्चर्ड. सो ये जो होता है मैन मेड मटेरियल से ही बना होता है. केमिकली कुछ सिंथेसिस है और इसी से जो है ऑब्जेक्ट्स बने हैं. ठीक है, तो ये लैबोरेटरी से निकले हैं. और बाकी जितने भी हैं, जैसे कि हमारा सिल्क हो गया, वुल हो गया या फिर कॉटन हो गया, दीज ऑल आर obtained from that of your natural products. Okay, so there are two different materials that we actually obtained in real life. That is, the first is your natural material and the second is your man-made material. Okay, so natural materials are the materials that are obtained from natural products like plants and animals, and man-made materials are the materials which are actually made up of man, made by man. कौन बनाया? इंसान बनाया. ठीक है, humans बनाया. All right. Now these natural resources or natural materials are actually classified into two different types. Resources का मतलब क्या होता है? Resource का मतलब क्या होता है? Can anybody give me the actual definition of resource? Resource मतलब जहाँ से आता है. ठीक है, so natural resources naturally आती है, और artificial resources जो कि हम बनाते हैं. ठीक है, so that is resource मतलब क्या होता है? जो already available है या जो हमें मिलता है, we obtain from somewhere, that is a resource, we use it. Okay, okay, these natural resources that we using are again classified into two basic types. The first is exhaustible resources and the second is inexhaustible resources. Now, what are exhaustible resources? As I have many a times told you, if any of the words that you're not able to guess, what you can do, you can just break the words into different fragments in order to guess that particular word's meaning, right? Okay, exhaustible resources से पूरा basically बहुत ही, exhaustible is a very common word, right? Exhaust मतलब खत्म हो जाना. ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं जो एक दिन ख़त्म हो जानी है. ओके, ख़त्म, टाटा बाय, और यूज़ और नहीं मिलेगा हमें. एट द सेम टाइम, व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज हम चाहे जितना भी यूज़ करें वो कभी ख़त्म नहीं होनी है. ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल, जो खत्म हो जाएगी एक दिन, और इनएग्जॉस्टेबल, जो खत्म नहीं होगी इवन आफ्टर lots of times using, even after using it many a times. Okay,
So what are exhaustible resources? These resources are non-renewed once exhausted. ठीक है, तो मतलब एक बार खत्म हो गया मतलब और वापस हम इसको नहीं रिन्यू कर सकते, नहीं ला सकते हैं, ठीक है. बट एट सेम टाइम व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? दीज आर रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, यानी कि अगर ये खत्म हो जाता है तो दोबारा आ जाएगा, ठीक है. इनएग्जॉस्टिबल, खत्म नहीं होगा कभी. ओके, दे आर नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज एंड फाइनाइट. यहाँ का जो होता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि भर भर के है ही है, लिमिटेड है, मतलब इतना क्वांटिटी या उतना क्वांटिटी, उसको बनने में काफ़ी साल लगते हैं. तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में इट इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ एंड वंस वी यूज इट, इट गेट्स डिप्लेटेड एंड फाइनली इट विल बी एग्जॉस्टेड, खत्म हो जाएगी, ठीक है. बट एट सेम टाइम ये वाले रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, चाहे उसका मतलब क्या है, दिस रिसोर्सेज हैव द एबिलिटी टू रिन्यू देम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड इनफाइनाइट. तो ये क्या होता है, अगर खत्म भी हो जाए तो वापस आ जाएगी, ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या है, सनलाइट. सनलाइट का क्या होता है, सनलाइट आती है सुबह सुबह, आती है 6-7 बजे, धूप आती है, उसके बाद शाम को चली जाती है. इवन आफ्टर आप यूज़ करो सनलाइट को या फिर ना करो, ठीक है, धूप है अभी दिख रही है ना, ठीक है, उसके बाद फिर चली जाएगी जब रात हो जाएगा. अगले दिन सुबह क्या होगा, अगले दिन सुबह फिर से धूप आएगी. तो धूप आती रहेगी डेली, 12 घंटे के बाद जाएगी, उसके बाद फिर वापस से अगले दिन आएगी. सो दिस द सनलाइट हो या वाटर हो, दीज आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ओके, इवन आफ्टर लिमिटेड अनलिमिटेड टाइम ऑफ यूजेस इट कैन बी व्हाट, रिप्लेनिश, वापस आ सकती है, ठीक है. बट एट द सेम टाइम exhaustible resources after using many a times it gets depleted and finally it will be exhausted, एक दिन खत्म हो जाएगी. एग्जाम्पल बताओ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सबके पास है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़ी होंगी. कोल खत्म हो जाएगी, कोल डिपॉजिट्स, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा एक दिन, नेचुरल गैस खत्म हो जाएगा. सो दीज आर एक्चुअली the examples. Okay, so natural resources basically are of two types, that is exhaustible resources and inexhaustible resources, and these exhaustible resources will be one day depleted and hence will be exhausted, khatam ho jayegi. When at the same time the inexhaustible resources even after using it multiple times can be replenished and renewed, ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जॉस्टेबल का कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और इनएग्जॉस्टेबल का सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा. ओके, गॉट द पॉइंट. वेरी वेरी इजी. एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो जाएगी, इनएग्जॉस्टेबल जो रहेगा. एग्जाम्पल याद रखना, दैट्स इट. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, next is coal. The first thing that we'll be reading is a exhaustible resources is inexhaustible resources, that is coal. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है. तो कोल हम लोग आजकल अपने घर पे कोल यूज़ नहीं करते, तो मैनी टाइम्स, लेकिन प्रीवियसली कोल बहुत यूज़ होता था. कोल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता था, ट्रेन चलाने में कोल यूज़ करते थे, ठीक है, खाना बनाने में यूज़ करते थे, सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से, सोर्स ऑफ लाइट, बर्निंग, हीट, ठीक है, इन सब में कोल प्रीवियस में बहुत यूज़ होता था. और कोल का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट वन विच वी विल बी रीडिंग, ठीक है. कोल कैसे बनना शुरू हुआ एंड ऑल, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो पहले जानते हैं कि कोल एक्चुअली में जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है. उसके बाद कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्यों एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो सभी पढ़ेंगे. ओके, ऑलराइट. सो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर नॉन रिन्यूएबल. हम इसे रिन्यू नहीं कर सकते. एज वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन सोशल साइंस, हमें ऑलरेडी पढ़ चुका होगा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं. रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं लाइक सनलाइट, वाटर, एंड नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, वापस से नहीं आएगा, ठीक है, खत्म हो जाना है. तो ये जो है कोल, ये जो होगा रिन्यू नहीं होगा, ये रिप्लेनिश नहीं हो सकता, ठीक है. इट विल बी वन डे एग्जॉस्टेड, क्योंकि लिमिटेड, जो लिमिटेड होता है, लिमिटेड क्वांटिटी में अर्थ में अवेलेबल है, और हम जब इसको पूरा यूज कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा. कॉन्सेप्ट इज दैट क्लियर, राइट. ओके, दे मेड इन नेचर, ठीक है, नेचर से बना हुआ है, एंड आफ्टर सम इयर्स दे विल बी एग्जॉस्टेड. तो जितना भी हमारा पर्टिकुलर खदान है, कोल खदान, तो वंस वहाँ पे कोल अगर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हमारा जितना भी कोल है वो क्या हो जाएगा, डिप्लेट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाना है, ठीक है. दिस इज़ अ मैन मेड, नॉट मैन मेड, दिस इज़ अ नेचुरल अकरिंग प्रोडक्ट. ओके, तो नेचुरली बनी हुई है, कैसे बनी है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे. इट इज़ एज हार्ड अ स्टोन एज इज ब्लैक इन कलर. तो कोल दिखता कैसे है, काला कलर का दिखता है. पिक्चर में देखो ब्लैक कलर दिखा है,
ठीक है। ब्लैक कलर आपने देखा होगा गाँव में वगैरह हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे शहरों में तो यूज़ नहीं करते हैं, बट गाँव में कोल आर स्टिल बीइंग इन यूज्ड। ओके, इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड सॉलिड, रॉक सॉलिड होता है वो, ठीक है, हार्ड एज स्टोन, ठीक है, पत्थर की तरह, स्टोन की तरह दिखता है और काला कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। तो कोल से एनर्जी निकलती है, वंस इट इज बर्न देन वो इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, खाना बनाने में यूज होता है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो अर्लियर, अभी जो जितने भी ट्रेन हो गए वो इलेक्ट्रिक हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ऊपर देखा होगा एक तार जाता है, तार से कनेक्ट होके क्या होता है, ट्रेन चलता है। बट प्रीवियसली ऐसा नहीं था, प्रीवियसली जो होता है स्टीम से चलता था, तो कोल डालते थे, कोल में ठीक है, इग्नेट करते थे और उसी से जो स्टीम प्रोड्यूस होता था उसी से ट्रेन चलता था। तो इनिशियली कोल हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क इट वाज डूइंग। तो अभी क्या होगा, अभी बहुत हम लोग जो हैं वी हैव एक्चुअली इंक्लाइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के ऊपर इंक्लिनेशन हमारा ज़्यादा है। सब इलेक्ट्रिक कार हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ही हम जिंदा हैं। तो बेसिकली वी हैव इंक्लाइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। बट प्रीवियसली जब होता था, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब कोल, पेट्रोल, कोल वगैरह का बहुत ज़्यादा वैल्यू था। इवन टुडे कोल इज बीइंग यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस। ओके, बट एक दिन है जो ख़त्म हो जाएगी। Alright, we're still using coal in many places. Like many people are using it to cook food in villages and all. और बहुत सारे लोग हैं जो फैक्ट्रीज में ठीक है, ये सब जगह पे यूज़ होता है, कोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोल इज़ एक्चुअली अ वेरी प्रीशियस प्रोडक्ट, ओके, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट इट इज़ गेटिंग डिप्लेटेड, खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। ओके, so earlier it was used in railway engines in order to produce train, so that train चलेगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी थर्मल पावर प्लांट्स में भी कोल का यूज़ होता था और अभी भी होता है, ठीक है। तो कोल इज एक्चुअली प्रीशियस मेटल। कोल इज यूज्ड एज अ fuel in various industries. Okay, so coal has numerous uses. It is used to cook food, it is used as in thermal power plants, it is used in fuels in different various industries में use होता है। Okay, उसके बाद फिर आपका जो होता है रेलवे इंजन्स में यूज़ होता था पहले। तो ये बहुत सारे वेरियस यूजेस हो गए। तो इन ऑर्डर टू सेव दैट पर्टिकुलर प्रीशियस मेटल we are inclined a bit towards that of your electricity. Okay, ऑल राइट। स्टिल टुडे थर्मल पावर प्लांट्स में कोल यूज़ होता है और कोल की माइनिंग बहुत अलग रेट पे होती है ठीक है। तो जब कोल माइनिंग होती है तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर प्लेस जो होगा हॉलो हो जाएगा, जिससे कि अर्थक्वेक्स आने के भी खतरे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लिविंग इन एरिया नियरर टू दैट ऑफ कोल माइंस, यू मस्ट नो दैट कि कोल की खदान जो होती है नीचे होती है, कोल ऊपर थोड़ी मिलता है। खदान क्या होता है, खदान जो होता है नीचे होता है। माइनिंग कहाँ होती है, नीचे, बहुत 150 बहुत ज़्यादा फुट नीचे होती है, ठीक है। so the workers have to work in very difficult situations. all right, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट होता है ना, कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। तो एकदम पूरा ज़मीन के नीचे हो जाकर बहुत ज़्यादा हज़ार हज़ार फुट के नीचे खदान होती है, वहाँ पे माइनिंग करना वो शुरू करते हैं। तो कोल बेसिकली होता ये है कि वंस उसको निकाल दिया गया तो वो पर्टिकुलर स्पेस और प्लेस जो होता है हॉल हो जाता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर प्लेस को पहले गड्ढा करते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया को, उसके बाद कोल निकाला जाता है, ठीक है। फिर भी उसको आजकल बहुत टाइम पे उसे रेत वगैरह दे के भरने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल दैट प्लेस इज हॉलो बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। दैट्स वाई जहाँ पे कोल माइनिंग होती है वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे माइनिंग एरिया होती है, कोई भी माइनिंग होता है, वहाँ पे अर्थक्वेक्स आने के खतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, बिकॉज वो प्लेस जो होता है वंस निकालने के बाद वो पर्टिकुलर प्लेस हॉलो हो जाता है, ठीक है, उसको भरने के बाद भी हॉलो रहता है। दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है टू हैव एन अर्थक्वेक, राइट। ओके, नेक्स्ट, कोल में होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल, क्या होता है कोल में, उसके अंदर कुछ तो होगा ना। कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, ओके, कार्बन से कोल बना होता है। कार्बन हमारा पता है आपको, तो उस पर्टिकुलर कार्बन से क्या बना होता है, कोल, ओके। और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज और कुछ अलग मेटल्स भी पाए जाते हैं। अब देखो एग्जांपल, देखो पिक्चर देखो, कोल ऐसे दिखता है, कोल माइनिंग देखी होगी, और ये माइनिंग, ये कितना फुट नीचे माइनिंग हो रही होगी, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी प्रीशियस मेटल विच इज गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे, खत्म हो जाएगी एक दिन, समझ गए। तो आज हमने क्या पढ़ा बताओ, what we read? So we read what are natural and man-made resources. Natural materials या resources क्या होता है,
जो पर्टिकुलर मटेरियल्स हम नेचर से पाते हैं, वॉट एवर मेटल इट इज, ठीक है, हमें जो भी मटेरियल नेचर से मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल, एंड मैन मेड जो हम बनाते हैं। नेचुरल एग्जाम्पल एनिमल से आ सकता है या फिर प्लांट से आ सकता है, ठीक है। और मैन मेड जो कहता है प्लास्टिक क्लोथ्स हम जो पहनते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर दी एक्चुअली सब्सटेंसेज दैट वी यूज इन आर डेली लाइफ, ठीक है, हम obtain करते हैं, समथिंग दैट वी आर एक्चुअली obtaining, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स, वी आर यूजिंग इट फॉर आवर यूज, ओके। All right. So next is exhaustible and inexhaustible. अब exhaustible resources क्या होता है? Exhaustible resources, as the name suggests, are the resources which will one day which will be getting depleted. खत्म हो जाएगा, ठीक है? Exhaust हो जाएगा. And inexhaustible resources are the resources which can be renewed and replenished. For example, sunlight, water, and which cannot be renewed or replenished. What are those examples? Those are कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों को याद रखना है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। तो उनको एग्जॉस्टेबल हो जाएगा, यानी कि लिमिटेड नंबर, लिमिटेड क्वांटिटी में अर्थ में अवेलेबल है, एंड आफ्टर गेटिंग यूज्ड मेनी अ टाइम्स इट विल बी डिप्लेटेड, खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज खत्म नहीं होगी, वो दोबारा फिर रिप्लेनिश रहेगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सनलाइट, ओके। नाउ कोल क्या होता है, कोल की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि कोल जो होता है नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और यू कैन से दैट नॉन रिन्यूएबल resources, okay, it is found in nature, it is made in nature, okay, and yes it takes years to form, साल लग जाते हैं, 1000 साल, 2000 साल, पता नहीं कितने कितने हजार साल लग जाते हैं कोल बनने के लिए, पर खत्म होने के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। एंड वन डे कोल विल बी एग्जॉस्टेड, ऑलराइट। ये माइनिंग करके निकाली जाती है, काला कलर का दिखता है, इट इज हार्ड एज स्टोन, ओके। एंड व्हाट आर द यूजेस, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, इट वाज अर्लियर यूज्ड एज to run the railway engines, okay, it is used to produce steam, to cook food, okay, used as a fuel in various industries, बहुत सारे use है, it is called as black gold, it is not basically like that, okay। चलो, coal and the main constituent of coal is carbon, और बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी रहते हैं, और ये और खदानों से निकाले जाते हैं, बहुत सारा कोल माइन से निकाला जाता है, हज़ारों फीट नीचे गड्ढा बनाया जाता है, और वहाँ से जो होता है आपका पर्टिकुलर ब्लास्ट करके उस एरिया को हॉलो किया जाता है, उसके बाद माइनिंग शुरू होती है, बड़ी बड़ी मशीन से कोल की एक्सट्रैक्शन निकाली जाती है, उसके बाद उसके वेरियस प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और फिर वंस द माइनिंग इज ओवर द पर्टिकुलर प्लेस इज एक्चुअली फिल्ड विद सैंड, सो दैट वहाँ जो पर्टिकुलर हॉलोनेस होगा उसको हम भर पाएंगे, बट इंस्टेड इवन आफ्टर दैट लॉट ऑफ अर्थक्वेक्स हिट द प्लेसेस, दैट्स व्हाई जहाँ पे माइनिंग होती है दोज एरियाज आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, ओके। All right, that's all for today. This is the first part that we read of the chapter 5, that is coal and petroleum. In the next chapter, what I'll be teaching you, in the next part, we'll be reading how actually coal came to existence, okay? What is its formation and what are its uses. All right, so the next part is going to be extremely interesting as it is the story. Okay, coal की story कैसे है, मतलब कैसे वो in existence आई coal, and what are its uses. So the next part is going to be very interesting. So don't forget to watch the next part, okay? And if you haven't watched the previous chapters, go to the playlist and watch it, all right? And do visit the next one, okay? Until then, I'll be seeing you in the next class. Have a good day and bye. See you soon.